أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. 64 تک ہوا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین، آمادہ کریں مومنین کو، علی القتال، جنگ کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمادہ کریں مومنین کو جنگ کے لیے. ان یکن، اگر ہوں، منکم، تم میں سے، 20 20 صابرون، صبر کرنے والے، یغلبو، تو غالب آئیں گے، 200، تو 20 آدمی غالب آئیں گے کتنے پر؟ 200 پر. وَيَكُنْ، اور اگر ہوں، منکم، تم میں سے، 100، یغلبو، تو وہ غالب آئے گا، 1000، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ قوم لا یفقہون، کہ یہ وہ قوم ہے جو سمجھتی نہیں ہے، جو سمجھ نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کو، آپ مومنین کو، یعنی صحابہ کرام کو آمادہ کریں، ذہن سازی کریں انہیں، کس کے لیے؟ القتال. قتال، جنگ کو عربی میں قتال کہتے ہیں. انہیں قتال پر آمادہ کریں. اب دیکھیں یہاں پر یہ آیت پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ جنگ کے لیے بات ہو رہی ہے. دراصل یہ حالات کیا تھے اس وقت؟ یہ حالات اس وقت یہ تھے کہ جیسے کہ اب جنگ بدر ہوئی تھی تو کیا تھا؟ جنگ بدر، اب ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہاں پر ایک مسلمان، پہلے تو 13 سال اسی مکے میں تھے، کوئی جنگ ہوئی تھی؟ یہ لوگ اپنے دین کی تبلیغ کر رہے تھے، تمام ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ آ گئے مدینہ اور یہاں ان کی ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم ہو گئی، تو اب ان لوگوں کو، پہلے تو یہ مارے ستائے جا رہے تھے، لیکن اب یہ لوگ بالکل، یہ ان کا وہ ہو گیا کہ اب ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا، کیونکہ اب یہ پاور میں اگر آ گئے، ابھی تو مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست ان کی بنی ہے، لیکن اگر یہ کامیاب، ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا تو یہ پھر، تو دراصل یہ جو جنگ بدر تھی، جو جنگ بدر ہوئی تھی، وہ اس لیے تھی کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. تو اب حالانکہ اس سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، صحابہ، وہ بار بار اس بات پر انہیں وہ آ رہا تھا کہ ہم اتنا دب کر، اتنا ہمیں اپنا وطن چھوڑ دینا پڑا، وہ ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں، ہمارے سامانوں کو بیچ رہے ہیں، سب کچھ تہس نہس کر رہے ہیں، اور ہم اتنے بزدل ہیں کہ ہم چپ چاپ بیٹھے ہیں. لیکن ابھی چونکہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام، وہ بار بار سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول، کیا ہم ایسے ہی برداشت کریں گے؟ تو لیکن اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ صبر کرو. لیکن اب چونکہ یہاں پر اللہ کا حکم آ چکا ہے،
अब अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहा है कि अब माहौल बनाओ कि अब हमें दब कर नहीं रहना, बल्कि उनसे तो तमाम रुकावटों को जो है ख़त्म करना है। हमें अपने दीन की उसात के लिए, दीन को फैलाने के लिए जो तमाम रुकावटें हैं, उन रुकावटों को ख़त्म करना है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमादा करें मोमिनीन को अलल क़िताल, जंग के लिए। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर तुम में से इशरूना साबिरूना, सब्र कहते हैं, सब्र के माना ये नहीं है कि जुल्म को बर्दाश्त करना, सब्र का माना है जम जाना, सब्र का माना है एक फैसला कर लो तो उस पर साबित कदम, फिर हालात कैसे भी हों जरा सा भी न डगमगाए, उसको कहते हैं साबिर लोग, साबित कदम लोग, है ना। एक फैसला कर लिया हक के लिए, सही समझकर, सोच समझ के फैसला कर लिया, तो फिर ये नहीं कि जरा सी मुश्किलात देखे तो घबरा गए, फैसला चेंज कर लिया, नहीं, एक फैसला कर लिया है तो फिर उसके बाद तो अल्लाह ताला अगर इस तरह के लोग, जैसे उन्होंने कहा ना, अल्लामा इकबाल का शेर है, मैं बार बार सुनाती रहती हूँ कि खाम है जब तक, खाम है जब तक तो मिट्टी का एक अंबार तू, ये ईमान जिसमें इतनी कमजोरी है कि जरा सी मुश्किलात देख के तमाम आज़ाम खत्म हो जाएं, तमाम हौसले हार जाएं, तमाम जो है ईमान की, तो फिर वो उसको क्या कहेंगे, ये उसको ये नहीं कहेंगे साबिर। सब्र हम कहते हैं ना कि ये भी एक सब्र है कि कोई नागवार चीज़ पेश आए तो या हालात वो हों तो फिर अल्लाह के लिए सब्र करना है, एक सब्र वो है। लेकिन यहाँ पर सब्र का मतलब ये है, जैसे आल इमरान में आप लोगों ने पढ़ा ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो सब्र करो, व साबिरू। अब सब्र का वो उसमें आया है व साबिरू, और साबित कदमी दिखाओ, जम जाओ हक पर, वराबितु, और मुकाबले के लिए तैयार रहो। तो यहाँ यानी हक के लिए कमर बस्ता रखो, चाहे हालात कैसे भी हो, हमें हक पर जमे रहना है, हक को अपने लोगों के सामने पेश करना है, हक के अपने यानी हक से जरा सा भी हमें हालात, ये नहीं है कि हालात जैसे उसमें अल-बकरा में आप लोगों ने पढ़ा कि ये वो लोग हैं फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, जब उन्हें रोशनी महसूस होती है तो उसमें चल लेते हैं, और जब अंधेरा छा जाता है तो वो रुक जाते हैं। तो यहाँ पर रोशनी महसूस यानी जब मामला आसान है तो वहाँ पर अपनी पसंद का है तो वहाँ पर हम दीनदार बन जाते हैं, वहाँ पर पक्के मोमिन लगते हैं। लेकिन जहाँ मुश्किलात पेश आई, जहाँ अपनी ख्वाहिश के खिलाफ अपनी जरा सा नफ्स पर सब्र करना हुआ, तो वहाँ तमाम जो है ईमान का दावा, तमाम वो मोमिनाना वो हमारी अल्लाह ताला हमारी इस कमजोरियों को दूर करे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर हो तुम में से इशरूना साबिरूना, 20 साबिर लोग, साबित कदमी दिखाने वाले लोग, हक पर जम जाने वाले लोग, तो यगलिबू गालिब आएंगे कितने पर, मिअतैन, 200 पर, यानी एक मोमिन 10 पर भारी है, 10 का मुकाबला कर सकता है। अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि काम है जब तक तो मिट्टी का एक अंबार तो वो जरा से मुश्किल देख लिया है और तमाम अज़ाइम खत्म हो जाए, जरा सा भी वो देख लिया तो हमारे सारे इरादे टूट जाएं, तो वो क्या है, उसको कहा है उन्होंने कि मिट्टी के एक अंबार और पुख्ता हो जाए तो शमशीर बेजिनहार तो। लेकिन अगर यही तौहीद का सबक, यही अपने अज़ाइम, अपनी जिम्मेदारी का एहसास मोमिनाना, तो ये अल्लाह ताला अल्लामा इकबाल ने कहा है, तो मिट्टी अगर वो पुख्ता हो जाए तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास, तो मिट्टी का तो वो शमशीर बेजिनहार तो वो खुली तलवार है जो कभी मैन में नहीं जाती। तो दरअसल यही है ना कि ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अब ये मुकाबला जो हुआ था 313, कहीं पर रात में 313 या 318 या 316 इतने ही लोग थे, और 1000 मुकाबला हुआ था। अब देखें उसमें लोग कैसे लोग थे, किन अज़ाइम के साथ, उनके हौसले को देखें कि अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैंने देखा कि
मुअव्विज़ बिन अफरा। मैं पलटा तो देखा वो बच्चा खड़ा है, एक कम उम्र बच्चा खड़ा है और वो कह रहा है कि चाचा जान अबू जहल कहाँ है। तो मैंने कहा भतीजे तुम अबू जहल, मुझे हैरत हुई, मैंने कहा कि तुम अबू जहल का क्या करोगे। तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि वो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, अगर आज मुझे मिल जाए तो मैं उसको, उन्होंने कहा कि मैं उसको शहीद कत्ल कर दूंगा या मैं खुद शहीद हो जाऊंगा। और कहने लगे, इतने में मैंने देखा कि अबू जहल भीड़ में देखा, मैंने कहा भतीजे ये रहा तुम्हारा शिकार। और फिर उस पलट कर उसने उस पर तलवार चलाई और वो वहीं ढेर हो गया। फिर तो दरअसल ये दूसरी रिवायत में है कि अमर बिन जम्मू, ये वो सहाबी हैं कि जिन्होंने पहला बार अबू जहल पे उन्होंने किया था, पहला बार अबू जहल पर उन्होंने किया था। और इस तरह से उन्होंने तलवार चलाई थी कि उसकी एड़ियों की एड़ी जो उसकी पीछे का हिस्सा होता है उसका, वो उसके निकल के दूर चली गई और वो बिखरा हुआ भाग रहा था। इतने में इकरमा बिन अबी जहल, उनके अबू जहल के बेटे ने तलवार चलाई और उनका अमर बिन जम्मू का बाजू कट गया। अब देखें कैसे कैसे लोग थे जो जिन्होंने 10 का मुकाबला किया था, एक का 3 से मुकाबला था। तो उन्होंने कहा वो उसने तलवार चलाई और उनका बाजू कट गया और वो लटकने लगा, उनका हाथ एक ये कंधे से कट गया और वो लटकने लगा। फिर भी जंग उनकी जारी है। कहने लगे जब मेरी जंग में वो मुखल होने लगा, यानी वो मुझे परेशान करने लगा, तो मैंने उसको दबाकर उसको अपने हाथ से उसे उखाड़ कर मैंने फेंक दिया। कहा ये थी, वो कहते हैं ना ये साबिर लोग, साबित कदम रहने वाले लोग, कि वो कंधे से कट गया है, वो हाथ लटक रहा है मगर उतनी देर के लिए भी नहीं रुके और उन्होंने उसको दबाकर उसको खींच कर फेंक दिया। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अमर बिन जम्मू के बेटे मास और अफरा के बेटे मुअव्विज़, ये दोनों लड़के आए और कहा कि उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल से कि अल्लाह के रसूल अबू जहल को मैंने कत्ल किया है। वो कहने लगे मैंने, आपने फरमाया कि तुम दोनों तरफ अपनी तलवार दिखाओ। जब उन्होंने तलवार दिखाई आपने कहा तुम दोनों ने कत्ल किया। लेकिन अल्लाह के रसूल ने अबू जहल का जो सामान था वो अमर बिन जम्मू को दिया था, वो अमर बिन जम्मू को दिया था अल्लाह के रसूल ने, कि पहले हकदार वो थे। कि ये इस तरह के साबित कदमी दिखाने वाले लोग, इस तरह से टकरा जाने वाले लोग थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वइन यकुम मिनकुम, और अगर हो तुम में से मिअतुन 100 यगलिबु, तो वो गालिब आएंगे अल्फन 1000 पर, मिनल्लज़ीना, उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया, बेअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, क्योंकि ये कौम समझ नहीं रखती, शऊर नहीं रखती, ये कौम समझती नहीं है। अल आना, अब खफ़फ़ अल्लाह, हल्का किया अल्लाह ने, अनकुम, तुमसे, वालिमा, और जान लिया, अन्ना, ये कि फीकुम, तुम में, ज़अफ़न, तुम में कमजोरी है। यहाँ पर कमजोरी से मुराद क्या है? हाँ, यहाँ से कमजोरी से मुराद क्या है? यहाँ तो इतनी बड़ी जंग जीत कर आए थे, यानी जंग जीत कर आए थे, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला अपने बंदों से कह रहा है, लेकिन अल्लाह ने देख लिया कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर तुम में 10 साबिर आदमी हैं तो 100 पर भारी होंगे, अगर 100 है तो 1000 पर भारी होंगे, है ना। तो लेकिन अल्लाह ने आना खफ़फ़ अल्लाह अन्कुम, लेकिन अल्लाह ने हल्का किया तुमसे, वालिमा, और जान लिया, अन्ना फीकुम ज़अफ़ा, यानी अल्लाह ने जान लिया कि तुम में कमजोरी है। तो कमजोरी कौन सी थी? यहाँ पर ईमानी कमजोरी कहाँ से ईमानी कमजोरी? यहाँ तो इतना बड़ा मुकाबला था कि सोचे कि वो मुकाबला कि जिनसे उस 1000
का लश्कर उधर है और जो असलहे से लेस है सर सामान के साथ इतराते हुए वहाँ से निकले हैं। और यहाँ पर हाल ये था कि सिर्फ 70 ऊँट थे और 2 घोड़े थे, सिर्फ 2 घोड़े थे और 70 ऊँट थे। और वो 70 ऊँट में से एक ऊँट पे 3 सवार होते थे, एक ऊँट पे 3 सवार होते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जो ऊँट आया था वो भी उस पर 3 बारी बारी उस पर सवार हुआ करते थे। ये हालत थी। अब देखें कि एक साहबी आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल अब यह जंग के लिए जा रहे हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करने जा रहे हैं, और क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा कौन सा अमल पसंद है? अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा कौन सा अमल पसंद है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो मुजाहिद जो बगैर ज़िरा के, जो बगैर हिफाजती हथियार के दुश्मनों से लड़ता हुआ शहीद हो जाए। इतना वो सुनते हैं तो अपनी ज़िरा उतार देते हैं और जंग के मैदान में कूद पड़ते हैं और लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। इसी तरह से ये उमैर बिन हम्माम, ये देखें कि जंग जब अल्लाह का रसूल वो खजूर बैठे खा रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ललकार रहे हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज क्या थे कि दौड़ो उस जन्नत की तरफ, दौड़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी वसअत जमीन और आसमान की जैसी है। और अल्लाह के रसूल वो इस तरह से अल्लाह के रसूल की आवाज़ उनके कानों में गई और वो खजूर अपनी फेंक देते हैं, उसको ख़त्म भी नहीं किया और जंग में कूद पड़ते हैं और लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। तो ये कहाँ से ईमान की कमज़ोरी? दरअसल यहाँ पर जो ईमान की कमज़ोरी आई है वो जो माल पर जो थोड़ा सा अल्लाह ताला, दरअसल ये माल जो है ना यहाँ पर बार बार इस बात वो क्यों आ रही है, इतना संजीदगी इसके साथ यहाँ पर वो की गई है, यहाँ पर उन पर ज़र्ब लगाई गई है कि दरअसल अगर जब तक माल की हिर्स होगी तब तक इंसान मजबूत नहीं हो सकता, तब तक इंसान मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए उमर जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा करते थे कि अपना माल आसमानों में जमा करो, जहाँ इंसान का माल होता है वहीं उसका दिल भी लगा रहता है। तो दरअसल ये माल जो माल गनीमत की तकसीम में जो उनमें कमजोरी आ गई थी, जो बहस हो गई थी, तो ये अल्लाह ताला फरमा रहा है जब तक ये हिर्स होगी दुनिया की कहीं जरा सा भी बाकी रहेगी तो तुम कम मजबूत हो ही नहीं सकते, है ना। इस बात पर मुतमईन हो जाएं, दुनिया तो उतनी ही मिलेगी जितनी अल्लाह ने लिख दी होगी, मगर आखिरत बगैर कोशिश के नहीं मिलेगी, है ना। तो ये अल्लाह ताला हमारे अंदर इस चीज़ को, और दूसरी चीज़, 2 चीज़ों से इंसान डरता है, एक तो दुनिया छूट जाए और दूसरी चीज़ दुनिया हाथ से न चली जाए, और दूसरी चीज़ मौत। तो ये वजह है कि कफन सर से बांध कर निकलते थे और उस कहते निकल के सर से बांध कर निकल चुके हैं, मगर उसमें भी देख रहे हैं अल्लाह ताला को कौन सा अंदाज पसंद है। अब चूंकि हालात ऐसे थे कि सबके पास सब असलहे से लैस नहीं थे, सबके पास हिफाजती हथियार नहीं थे, न हथियारी लिबास थे, हिफाजती लिबास थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो मुजाहिद जो अपनी हिफाजत की फिक्र ना करे और अल्लाह की राह में दुश्मनों के सफ में कूद पड़े, उन्होंने फौरन अपनी ज़िरा उतार दी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर तुम में 10 भी सब्र करने वाले हैं तो 100 से मुकाबला कर सकते हैं, और अगर 100 हैं साबित कदमी दिखाने वाले सब्र वाले तो 1000 पर भारी होंगे। लेकिन अल्लाह ने जान लिया अभी तुम्हें कमजोरी है, यानी अभी तुम्हारे अंदर वो जो अल्लाह देखना चाहता है वो अभी मैंने कहा ना कि हालांकि इस बदर के जंग बदर के में जो लोग शामिल हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, उनसे कोई गलती भी कभी सरजद हो जाती थी तो अल्लाह के रसूल कहा करते थे कि ये तो बदरी हैं, ये बदरी सहाबी हैं। क्या खबर कि अल्लाह ने उस दिन इस आसमान दुनिया पर आकर ऐलान कर दिया हो कि जो भी इस जंग में शामिल हुआ है अल्लाह उसे बख्श देगा। तो ये यहाँ पर लेकिन फिर भी अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहा है कि अल्लाह ने जान लिया कि तुम में
कमजोरी है, फयकुम बस अगर हो मिनकुम तुम में से मिअतुन 100 साबिरतुन सब्र करने वाले, यगलिबु तो गालिब आएंगे मिअतैन। अब देखें घटा दिया है कि अगर इस तरह की वो बाकी रह जाएगी तो वो उनका है ईमान की मजबूती है, लेकिन दरअसल कहीं भी कमजोरी अगर उनके अमाल की है या इस तरह की अखलाकी वो आएगी तो ऐसे लोग 100 लोग 200 पर भारी होंगे। यहाँ पर कहा 1 का 10 से मुकाबला, अब यहाँ 1 का 2 से। वही और अगर हो मिनकुम तुम में से अल्फुन 1000 यगलिबु तो वो गालिब आएंगे अल्फैनी 2000 पर बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से। वल्लाहु मअस साबिरीन और अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। मा काना नहीं है था लिनबिय्यिन किसी नबी के लिए, इयकुन कि अगर नहीं था किसी नबी के लिए, अन यकूना ये कि हो लहू उसके पास असरा कैदी, हत्ता यहाँ तक कि जुस्खिना कुचल डाले फिलर जमीन में, तुरीदूना तुम हासिल करना तुम चाहते हो, और दुनिया हासिल करना चाहते हो, या इस तरह से बोलेंगे कि तुम्हारे पेश नजर दुनिया है, तुरीदूना अराद दुनिया तुम दुनिया के फायदे चाहते हो, वल्लाहु और अल्लाह युरीदुल आखिरा और अल्लाह आखिरत चाहता है, अल्लाह के पेश नजर आखिरत है। वल्लाहु और अल्लाह अजीजुन हकीम अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। यहाँ पर अल्लाह ताला ये उसका जिक्र है कि जब जंग बदर जंग खत्म हुई और कुफार भाग निकले तो सब उन्होंने क्या किया, कुछ लोग माल गनीमत समेटने में लग गए और कुछ लोग कैदियों को पकड़कर उनको गिरफ्तार करके दुश्मनों को गिरफ्तार करके लाने लगे। तो अभी यानी होना ये चाहिए था कि उनका दूर तक पीछा किया जाता, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने माल गनीमत समेटने में और जल्दी जल्दी उनको गिरफ्तार करने में लग गए। तो अब उसके बाद फिर अब उस कैदियों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला मशवरा किया कि क्या किया जाए इनके साथ। उसमें से अल्लाह के रसूल ने जब मशवरा किया तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये अपने ही भाई बंद हैं, मेरा मशवरा तो ये है कि इनको फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरा मशवरा तो ये है कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए, मेरा मशवरा ये है कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए ताकि अल्लाह को पता चले कि हमारे और इनके। और उन्होंने कहा कि हर कैदी को उनके रिश्तेदार, आप देखें कि कितना मुश्किल मरहला था ये कि कोई आम जंग नहीं थी। इसमें 80 या रवायत में आता है कहीं पर 80 कहीं पर 82 या 84 यानी 84 82 या 80 इतने ही लोग मुहाजिर थे और बाकी अंसार थे। तो अंसार का भी इम्तिहान कुछ कम नहीं था कि इन्होंने अभी तो इतने सारे मुहाजिर हिजरत करके आ गए थे, इनका रहने का बंदोबस्त सब कुछ इन्होंने बांट दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें भाईचारा करवाया था और इसमें बांट दिया था। और उसके बाद अब इसकी वजह से तो ये अरब के उन्होंने मक्के से जो पावरफुल लोग थे उनसे दुश्मनी मोल लिया था और अब उनके खिलाफ तलवार भी उठाना थी। लेकिन अब मुहाजिर सबसे सख्त जो वो था मुहाजिर का था कि जंग की थी अपने ही खून से थी, अपने ही खानदान से थी, अपने ही लोगों से थी। अब देखें कि उसमें जो कैदी जो थे उसमें से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे और हजरत मुसअब बिन उमैर के भाई थे, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे थे। यानी उन्होंने अपनी तलवार के सामने तो अपना ही खून, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह का रसूल मेरा मशवरा ये है कि हर उसके कैदी को उनके रिश्तेदार के हवाले किया जाए कि वो कत्ल करे ताकि अल्लाह को पता चले, अल्लाह के सामने हुज्जत कायम हो जाए
کہ اللہ کی محبت کی سامنے اللہ کی محبت میں کوئی محبت حائل نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول کیا۔ آپ کو مشورہ ان کا پسند آیا کیونکہ آپ خود نرم دل تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول میرا مشورہ تو یہ ہے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، وہ اپنے ہی بھائی بند ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتی ہمارے بازو بنیں گے، اور جو فدیہ حاصل ہوگا اس سے اس غربت میں اس مشکل وقت میں یہ ہمارے اسلام کی جدوجہد میں کام آئے گا۔ اور اللہ کے رسول نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو مان لیا۔ جب یہ آیت آئی ہے، آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ آیت ہے ما کان لنبی، کسی نہیں تھا کسی نبی کے لیے کہ ان یکون لہ اسرا، کہ ہو اس کے پاس قیدی، حتی یسخن فی الارض، یعنی قیدیوں کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو یسخن فی الارض، ان کو اچھی طرح کچلنے کی ضرورت تھی۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا حاصل کرنا چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اب دیکھیں گے ان کے جو بڑے بڑے وہ تھے، عتبہ، شیبہ، امیہ، ابو جہل، یہ سب کے سب قتل کر دیے گئے تھے، لیکن یہاں پر جو قیدی بھی جو اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا یہ تھی کہ تمام کو اس دن اچھی طرح کچل دیا جاتا، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا۔ اللہ کے وہ مقابلے کے لیے وہ آئے تھے، انہیں قیدی بنا کر رکھنے کے بجائے انہیں، تاکہ اسی دن ان کی ساری ہمت ساری وہ ٹوٹ جاتی۔ لیکن واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لولا کتاب، اگر نہیں کتاب لکھ دیا گیا ہوتا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، سبق، اللہ کی طرف سے اگر یہ قول لکھ نہ دیا گیا ہوتا، یہ سبق نہ لکھ دیا گیا ہوتا، لمسکم، تو ضرور پہنچتا تم کو، چھوتا تم کو، فیما، اس میں جو اخذتم، تم نے لیا، عذاب عظیم، جو کچھ تم نے لیا ہے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ تو دراصل جب یہ آیت نازل ہوئی اور بہت ہی سخت الفاظ میں یہ الفاظ تھے، کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ دشمنوں، یہ اس سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی تھی، اور اس میں جنگ کے متعلق جو ہے اس میں ہدایت آ چکی تھی، ابتدائی آیات کی جنگ کے اصول اور ہدایت کیا ہے، اس میں آیت آئی تھی کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہاری مٹبھیڑ ہو کافروں کے گروہ سے تو ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم انہیں کچل ڈالو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، انہیں مضبوط باندھو، یعنی قید کرو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى، اور اس کے بعد تم ان سے فدیہ، تو یہ دراصل یہاں پر فدیہ لے کر چھوڑنے کی بات تو اس میں کی گئی تھی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کیا تھا۔ لیکن جب تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ پہلے سورہ محمد میں نازل نہ کیا گیا ہوتا، یہ آیت نہ لکھ دی گئی ہوتی، جو کچھ تم نے کیا ہے اس پر تمہیں عذاب پہنچتا، بڑا عذاب پہنچتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں بول رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے نہیں بتایا تو میں بھی روؤں گا، آپ لوگ کچھ بتایا تو صحیح، آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، جو تمہارا فیصلہ تھا وہی اللہ کا فیصلہ تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک اس درخت کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے عذاب کو یہاں تک دیکھ چکا تھا، اللہ کا عذاب یہاں تک آ چکا تھا۔ ایک دوسرے ابن حشام کی روایت ہے، جس جو اہل سیرت نگار جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب مجاہدین مال غنیمت سمیٹنے میں اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ کر جب باندھنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سعد بن معاذ، ان کے چہرے پر کچھ کراہیت کے آثار تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے سعد، معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی یہ کارروائی تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ
تو साद बिन माज कहते हैं अल्लाह के रसूल, हाँ ये पहला मार्का था। अल्लाह के रसूल, मैं सोच रहा था कि पहला मार्का था जिसमें अल्लाह ताला ने अहले शिर्क को शिकस्त दिलाई। इस मौका पर उन्हें कैदी बनाकर रखने के बजाय उनकी जानें बचा लेने से ज़्यादा बेहतर ये था कि उनको खूब कुचल डाला जाता। तो यहाँ पर उसी का आया है कि लौला किताब मिनल्लाहि सबका, अगर लिख न दिया गया होता, ये नोश्ता, ये तहरीर न लिख दी गई होती, लमसकुम, तो ज़रूर पहुँचता तुमको, फीमा, इसमें अखज़्तुम, जो कुछ तुमने लिया, अज़ाबुन अज़ीम, तुम्हें बड़ा अजाब पहुँचता। फ़कुलू, लेकिन चूँकि यहाँ पर अल्लाह ताला ने उन पर तनकीद की है, अल्लाह ताला ने तंबीह की है, आगाह किया है, मगर फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम। अब देखें, ये मैं वही सोच रही थी कि ये कौन लोग थे? वो बदरी सहाबी थे, वो लोग थे जो अल्लाह, आप तारीख उठाकर देखें कि किस तरह से उन्होंने इन दुश्मनों का मुकाबला किया है, किस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पीछे किस तरह से वो अपनी जानों को निसार करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी वो हुई है तो अल्लाह ताला ने सख्त तंबीह की है, सख्त। क्योंकि ये अल्लाह ताला, ये वो लोग थे जिन्हें अल्लाह ताला चट्टान कहते हैं ना, जिसे सोने को तपाकर बिल्कुल वो खरा बना दिया जाता है, इसी तरह से यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को एकदम तपाकर अल्लाह ताला यहाँ पर उन्हें मजबूत बनाना चाह रहा है, उनके अंदर कोई भी कमजोरी ना रह जाए। जिस तरह से अहले अरब अपने जंगी घोड़ों को वो धूप में रख कर सूरज की तरफ रुख करके लू के गर्म हवा में खड़ा करते थे, भूखा रखकर, कि ताकि उनको भूखे प्यास से रह कर भी, मुश्किल हालात में रह कर भी, चाहे कितनी भी गर्म हवा हो, चाहे कितनी भी सख्त धूप हो, वो अपने कदम उनके न उखड़ाए, वो उसका वो आदी बनाते थे। उस घोड़े को कहते थे सौम, है ना। तो दरअसल अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को वही वो चीज़ वो पुख्ता बनाना चाहता था कि ये अल्लाह की फौज, अल्लाह की ये फौजी कितने भी मुश्किल हालात हों इसके आदी हो जाएं। जब आदत से वो, जब ये चीज़ उनके अंदर वो हो जाएगी, तो फिर यही वो लोग होंगे जो 100 लोग 1000 पर भारी होंगे, 10 लोग 100 पर भारी होंगे। तारीख गवाह है इस बात की कि जब ये सबक उन्हें पुख्ता हो गया, तो फिर कहते हैं जो इस्लामी जो फतूहात हुई हैं, जो इस्लामी खिलाफत इतनी दूर दूर तक, इतने कम वक्तों में, एक सदी भी न गुजरी थी कि उस पूरे अरब के पूरे खित्ते पर इस्लाम गालिब आ गया था। तो दरअसल यूं ही नहीं था, है ना। रोम से लेकर ईरान, इराक, है ना, ये तमाम जो इस्लाम के ज़रिए नगे आए, बड़े ही, तो ये वो लोग थे जिन्होंने ये साबित किया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फकुलू, खाओ, मिम्मा, उसमें से गनिम, तुम जो तुमने माले गनीमत जो तुमने हासिल किया है, हलालन तय्यबा, तुम्हारे लिए हलाल और पाक है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। या अय्युहन नबियो, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दीजिए, लीमन, उसके लिए जो, फी में ऐदीकुम, जो तुम्हारे हाथों में है, मिनल असरा, कैदियों में से, यअलमिल्लाहु, अगर अल्लाह जानता, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए उन लोगों से, फी ऐदीकुम, जो तुम्हारे पास कैदी हैं, ऐदीकुम मिनल असरा, जो कैदी तुम्हारे हाथों में है, यअलमिल्लाहु, कि अगर अल्लाह जानता, फी कुलूबिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है, खैरन, भलाई, यूतकुम, तो तुम्हें अता करता, खैरन, भलाई, मिम्मा, उसमें से, उखिज़ा, जो लिया गया, मिनकुम, तुमसे, वयग़फिर लकुम, और तुम्हें माफ़ कर देता। वल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब देखें, ये जो कैदी जो आए थे, मैंने बताया ना कि अपने ही भाई बंद थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आपके हम उम्र हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, आपके दामाद। अब देखें कि अपनी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शौहर अबुल आस थे। लेकिन ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐसा तो वो हम उम्र थे, साथ में खेले कूदे थे। जब वो कैदी बनाकर लाए गए हैं तो और उन्हें बांध कर रखा गया है तो करा रहे थे, वो कहा रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद नहीं आ रही है, आप लेकिन जबान से कुछ नहीं कह रहे हैं मगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप करवट पर करवट बदल रहे हैं। सहाबा कराम समझ गए कि अल्लाह के रसूल को नींद क्यों नहीं आ रही है। वो उठे और जाकर उनकी बेड़ियों को ढीला कर दिया। फिर अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि अब्बास की आवाज़ बंद हो गई, क्या हुआ? तो लोगों ने कहा कि उनकी बेड़ियां ढीली कर दी गई हैं। आपने पूछा कि क्या तमाम कैदियों की बेड़ियों को ढीला कर दिया गया? फिर उनको जब उन्हें ये जो कैदी थे उनके लिए ऐलान कर दिया गया कि वो फिदिया लेकर उन्हें जो माल उन्होंने उनकी बेटी ने उनको छुड़ाने के लिए जो फिदिया भेजा था वो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हार था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो हार पेश किया गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की याद आ गई और आप पर दिक्कत तारी होगी और आप सहाबा कराम से कहते हैं कि अगर तुम लोग इजाजत दो। आप पूछे वक्त का रसूल उनसे पूछ रहा है कि ये भी एक उसका पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अपने सहाबा कराम के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उसकी ज़रूरत थी, लेकिन ये एक उसूल था कि अपने सहाबी, अपने दोस्तों, अपनी महफिल के लोगों से मशवरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे मशवरा किया और कहा कि अगर आपने उनसे इजाज़त थी और आपने उनसे कहा कि अगर तुम लोग इजाज़त दो तो मैं इस हार को वापस कर दूं। ये हज़रत खदीजा का है, ये खदीजा का हार है, अगर तुम लोग कहो तो मैं ज़ैनब को इसको वापस कर दूं। तो सहाबा किराम ने उन्हें वो कहा कि अल्लाह के रसूल उनका फिदिया ये रखा कि वो उन्हें आज़ाद कर दिया और कहा कि आपका फिदिया ये है कि आप आपकी बेटी ज़ैनब को यहाँ पहुँचा दें। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहा नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दीजिए लिमन उसके लिए जो कि ऐदीकुम जो तुम्हारे हाथों में है, मिनल असरा कैदियों से, ई आलमिल्लाह कि अगर अल्लाह जानता फी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में खैरन भलाई है, युतिकुम तो तुमको अता करता, खैरम भलाई, मिम्मा उससे जो उखिज़ा लिया गया मिनकुम तुमसे, वयग़फिर लकुम और तुम्हें माफ़ कर देता, वल्लाहु गफूरुर रहीम अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। देखिए अब ये भी अल्लाह ताला फरमा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने भी ये कह दें कि अगर अल्लाह को मालूम हुआ कि तुम्हारे दिल में कुछ खैर है तो तुम्हें उससे बढ़ चढ़ कर आते देगा जो तुमसे लिया गया है और तुम्हारी खताएं माफ कर देगा। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। वहीं युरीदु और अगर तुम इरादा करते हो खियानत का, अगर तुम खयानत का इरादा रखते हो, फ़क़द ख़ानुल्लाह और यकीनन तुम कर चुके हो, कद का सिगा कर चुके हो, फ़क़द ख़ानुल्लाह यकीनन तुम खयानत कर चुके हो अल्लाह के साथ, मिन क़ब्ल इससे पहले, फ़अमकना मिनहुम तो उसमें लफ्ज़ी तर्जुमा में क्या लिखा है? कब्जे में दे दिया। हाँ, फ़अमकना मिनहुम तो अल्लाह ने तुम्हें उनके कब्जे में दे दिया, उनके काबू में तुम आ गए। वल्लाहु अलीमुन हकीम और अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग आमनू जो ईमान लाए, वहाजरू और हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया, बिअमवालिहिम अपने मालों से, व अनफुसिहिम और अपने जानों से, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, वल्लज़ीना और वो लोग आवौ और वो लोग जिन्होंने ठिकाना दिया, पनाह दी, वनसरू और मदद की, उलाइका यही लोग, बादुहुम औलिया बाद यही लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, सरपरस्त हैं, वली हैं। वल्लज़ीना आमनू और वो लोग जो ईमान लाए, वलम युहाजिरू और उन्होंने हिजरत नहीं की, मालकुम नहीं है तुम्हारा, मिन वलायतिहिम
उनसे कोई वलायत, उनसे कोई दोस्ती, न उनकी सरपरस्ती में शयन कुछ भी, हत्ता यहाँ तक कि युहाजिरू, यहाँ तक कि वो हिजरत करके आ जाए। दरअसल अब यहाँ पर जब तक कि एक कोई इस्लामी जब मदीना एक इस्लामी रियासत बन गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि जो लोग जहाँ दबे कुचले मुसलमान हैं वहां से निकल कर इस इस्लामी रियासत में आ जाएं, तो उस वक्त अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहा है कि जिन लोगों ने हिजरत नहीं की, अब याद रखें कि ये सन 2 हिजरी, हिजरत को दूसरा साल है, ये सन 2 हिजरी में नाजिल हुई है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो लोग जो ईमान लाए हैं और हाजर और हिजरत की, वजाहद और जिहाद किया भी अमवालिहिम, अपने मालों से और अपनी जानों से, फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में, और वो लोग भी वल्लज़ीना आवौ, और वो लोग जिन्होंने पनाह दी, जिन्होंने ठिकाना दिया, वनसरू और मदद की, उलाइका बाज़ुहुम औलिया बाज़, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सरपरस्त हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग, औलिया कहते हैं, इसमें सब कुछ आता है, सरपरस्त भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं, हिमायती और मददगार भी कहते हैं, तो एक दूसरे के ये सब कुछ है। और वो लोग जो ईमान लाए हैं मगर हिजरत नहीं की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी विलायत का कोई हक आप उनकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है कुछ भी, यहाँ तक कि वो हिजरत करके आ जाएं। यानी अब उन पर, अभी तक जब कोई पनाहगाह नहीं थी तब हिजरत फर्ज नहीं थी, लेकिन अब जब एक पनाह मिल गई, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी रियासत बन गई जहाँ इस्लाम के तकाज़ों को पूरा करना आसान है, तो वहाँ पर अब उन पर फर्ज हो गया था कि वो वहाँ पर हिजरत करके आ जाएं। इसी तरह से आज देखें कि चूंकि जो कहा गया है ना कि मुसलमानों को दबे कुचले रहने की आदत सी हो गई है ना, बेचारे बनकर, और ये अपनी बेचारगी का वो दिखाते हुए कि क्या करें, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर वो हो रहा है, दूसरों को वो बनाना और अपनी वो जाहिर करना बड़ा आसान होता है ना, लेकिन जो गयूर मुसलमान होते हैं वो इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करते। अब ये मजबूरी अलग चीज़ है कि आज कोई कंट्री ऐसा है जो कहे, तो ये इस दबे कुचले और ये रहने से बेहतर है अगर इस तरह की कोई सोसाइटी, कोई कंट्री वो अगर ये ऐलान करती है तो यहाँ से हिजरत कर जाना है। लेकिन बहरहाल ये भी अल्लाह का शुक्र एहसान है कि जहाँ पर हम हैं अभी दीन के तकाजे को पर अमल करना अभी मुश्किल नहीं है, बल्कि ये हमारी ही कमजोरी है कि जो अल्लाह ने हमें कि दारुल हरब में हम नहीं हैं, हम दारुल दावा में हैं। हम अपने अमाल से, अपने किरदार से लोगों को बताते हैं कि मुसलमान किसको कहते हैं, मोमिनाना सिफात क्या होती हैं, मोमिन का कैरेक्टर और किरदार कैसा होता है, उनके अखलाक कैसे होते हैं, उनके लेन देन कैसे होते हैं। दरअसल ये चीज़ अगर हम पेश करते तो कुछ और नक्शा होता। ये अल्लाह की रहमत थी कि हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया था इस दारुल कुफ्र को दारुल इस्लाम बनाने का, लेकिन चूंकि ये इसकी सबसे बड़ी चीज़ तो ये है हमारे लिए कि हम ये काम हम ये समझते हैं कि हमने नमाज पढ़ लिया, हमने कुरान पढ़ लिया, चंद काम हमने मुसलमान के जैसे कर लिया और हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई। ये अल्लाह के यहाँ है। और जो हमने दीन की शक्लें बिगाड़ रखी हैं कि हमारी ये इसमें रहते हुए हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि हम इस्लाम का आईना लोगों को दिखाते, अपने किरदार से, अपने कौल से, अपने अमल से लोगों के सामने पेश करते कि मुसलमान कहते किसको। लेकिन हमने खुद उसकी शक्ल बिगाड़ दी है और फिर अपनी बेचार की, है ना। अल्लाह ताला फरमाता है जो तुम पर मुसीबत आती है तुम्हारे हाथों की कमाई है ना। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अभी वो नौबत भी नहीं आई है कि हमें ईमान के, हमें कोई ये नहीं कहता है कि आप अपने चेहरों को न छुपाएं, कोई ये हमसे नहीं कहता कि आप नमाज न पढ़ें, कोई ये नहीं कहता कि आप बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो शरीयत है हमारी और उसको करने वाले हम खुद हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने माशरे को बिगाड़ने वाले हम खुद हैं, तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो मुसलमान बनाए हैं कि हम अपने अखलाक, अपने किरदार, अपने कैरेक्टर, अपने
اور سب سے بڑی چیز جو اسلامی وہ ہے، وہ تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے والا بنائے. مسلمان ایسا ہوتا ہے نا، وہ تمام چیزیں اپنی زندگی سے نکال پھینکیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے نا. اپنے کیریکٹر کردار سے لے کر، اپنے لباس سے لے کر، اپنی تمام چیزیں جو ہیں، یہ ان تمام چیزوں کو جب تک ہم اپنے اندر نہیں لائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو پھر کیا جواب دیں. پھر ہم یہ سوچیں کہ ہم اور تو آپ دیکھیں یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں ہجرت کر جانا. جب تک وہ لوگ ہجرت کر کے نہیں آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہجرت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تو برائیوں سے لا تعلق ہو جائے، ان تمام کاموں کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، وہ ہجرت میں شمار. تو یہ ہجرت تو ہم پر فرض ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہجرت تو فرض ہے نا ہم پر، برائیوں سے لا تعلق ہو جانا، ان تمام کاموں کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ولم یہاجروا، اور ہجرت نہیں کی انہوں نے. اب ہجرت کون سی تھی؟ اپنے ملک کو، اپنے رشتے دار کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا. ایمان وہ لوگ لائے تھے اور مشکل حالات میں لائے تھے، جب ایمان کے بدلے انہیں بہت کچھ، انہیں سزائیں دی جاتی تھیں، انہیں سختیاں کی جاتی تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ سب کچھ جھیل لیں، لیکن اتنی اگر ان کے اندر وہ نہیں ہے کہ اپنی اس سرزمین کو چھوڑ دیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں اور چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت یہاں آ جائیں، تو پھر من ولایتہ من شیء، ان کی ولایت کا حق کچھ بھی نہیں ہے آپ پر یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آئیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تمام جو ہے ان کا جو اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی میں جو بھی فضولیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کام ہے، ہم کرتے جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ولایت، اللہ تعالیٰ کی سرپرستی ہم کو حاصل رہے. تو یہ جو اللہ کا شکر ہے، نہ جانے کتنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، کہ ان تمام نافرمانی کے باوجود ہمیں صبح اور شام ہر ایک نئے دن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پہلے ہمیں موت نہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ مسلم ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی، ہمارے اندر اتنی تو اللہ سے محبت ہو کہ ہم ان تمام برائیوں سے لا تعلق ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ ہم ان تمام برائیوں سے ہم لا تعلق ہو جائیں، جو تیرے ناپسندیدہ کاموں سے ہم دور ہو جائیں. دعا پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.